So in today's topic, we will understand the related aggregates. So let us get started with See, the current topic today is of national income and the related aggregates. हमने उस दिन समझा था we have understood the short form of national income is NNP at FC. Now, whenever you are writing NNP at FC, try to remember it like this way. It is net national product at factor cost. This was the short form of what national income. अब इसके हिसाब से आगे short forms भी आएंगे. Now let us understand what are these related aggregates. Okay. Now here it is given. Suppose first of all let us understand again depreciation because abhi aage aayega use of depreciation. So here depreciation is given is what? Again it is the loss in the value of fixed assets. Again what it is the loss in the value of fixed assets due to normal wear and tear expenses. See, जब depreciation लगेगा तब तक value क्या होती है? Reduce. Already told you, whenever there is depreciation, the assets value reduces. Now, what is the difference between gross and net? उस दिन समझाया था, when we are going from gross to net, we will reduce what? We will deduct the depreciation. और जब नेट से ग्रॉस जा रहे हैं तब डेप्रिसिएशन क्या करेंगे हम? ऐड. That is the very basic concept, that difference between the gross and net. So here as it is given, gross is including depreciation, इसीलिए उसमें add word है. And the net is not including depreciation, इसीलिए उसके नीचे दिखा होगा minus or it is less. Is this clear? Now focus again that again आपको अगर दिया हो GDP, suppose your word is gross domestic product, अगर मुझे gross domestic product से NDP पे जाना है, only see DPDP is remaining same, only I have to go from gross to net. तो अपन क्या माइनस करेंगे? We will only deduct depreciation from what? We will only deduct depreciation from GDP, that is gross domestic product. Gross domestic product is जैसे ही आप depreciation मैस करोगे, you will go to the net domestic product. Now after this concept is NIT. अब NIT का सिंपल फॉर्मूला है, that is tax minus subsidy. NIT का सिंपल फॉर्मूला, गौरव, what is the simple formula of NIT? Just say tax minus subsidy. Tax minus सब्सिडी. subsidy. अब व्हाट आर टैक्सेस? जो टैक्सेस हम मार्केट में पे करते हैं, सपोज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, टेक फॉर द एग्जांपल, आज अगर तो कोई चीज परचेज करने जाएगा तो उसमें लिखा होता है MRP, फिर उसके नीचे ध्यान से लिखना, उसमें लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. Taxes, yes. ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी टैक्स प्राइस इंक्लूडेड है. फिर सब्सिडी. सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी हम डिडक्ट करते हैं. व्हाई? बिकॉज दैट इज रिड्यूसिंग योर कॉस्ट. टेक फॉर द एग्जांपल, आपको एलपीजी पे सब्सिडी मिलती है, तो वो सब्सिडी Yes. आप पे नहीं करते हो, गवर्नमेंट आपको अपने अकाउंट्स में दे देती है, तो उससे क्या हो जाता है? आपका मार्केट प्राइस क्या हो जाता है? रिड्यूस. अब ये एनआईटी हम निकालते क्यों है? NIT is used to convert the market price into factor cost. याद रखना, NIC किसके लिए यूज करते हैं अपन? So as to convert what? Market price to factor cost. Factor cost. अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो NIT क्या करना पड़ेगा? माइनस. और NIT निकालते कैसे? ऊपर देख लिया, दैट इज टैक्स माइनस सब्सिडीज. और फैक्टर कॉस्ट से अगर मुझे मार्केट प्राइस जाना है तो NIT क्या करूंगा मैं? प्लस. आई विल एड NIT. और वही मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, सो NIT माइनस. सिंपल एग्जांपल यहाँ पे भी लेते हैं. सपोज आपको GDP दिया हुआ है मार्केट प्राइस पे, और अब मेरे को GDP लेके जाना है फैक्टर कॉस्ट, तो क्या माइनस करूंगा? सिंपल, व्हाट आई विल रिड्यूस? GDP इज सेम, अपन को सिर्फ किस पे जाना है? मार्केट प्राइस से किस पे जाना है? Factor cost. फैक्टर कॉस्ट. तो क्या माइनस करूंगा? Market price से factor cost minus. NIT माइनस कर लूंगा मार्केट प्राइस से, NIT will be deducted, एंड अल्टीमेटली अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आना है, सो अगेन NIT will be add.
This is the basic concept related with your macroeconomics concept. Okay, ये सारे के सारे basic concepts से related हैं. अब see, ultimately taxes are always increasing the market price and subsidy is always decreasing the market price. But हम जैसे NIT minus कर लेते हैं तो ultimately we are going from market price to factor cost. So अभी तक अपन ने 3 basic rules पढ़ लिए. What are the 3 basic rules? फर्स्ट बेसिक रूल, अगर मुझे ग्रॉस से नेट जाना है तो क्या करूंगा माइनस में, गौरव? सर ग्रॉस, CFC मतलब माइनस। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, दैट इज डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल. और नेट से ग्रॉस जाना है, जैसे अभी देख अपोजिट, नेट से ग्रॉस जाऊंगा तो क्या माइनस करूंगा? सर प्लस करेंगे ना नेट से CFC। ग्रॉस वी विल ऐड डेप्रीसिएशन. देन सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर मार्केट प्राइस, एज यू कैन सी एमपी एंड एफसी, अगर प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे है और उसको फैक्टर कॉस्ट पे लेके जाना है तो मैं क्या माइनस करूंगा? एनआईटी. मींस मार्केट प्राइस से अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है सो मैं माइनस करूंगा एनआईटी. एंड एनआईटी फॉर्मूला इज व्हाट? टैक्स माइनस सब्सिडी. फिर उसके बाद वही फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आना है, इसका अपोजिट. सो आई विल ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. क्लियर गौरव? एनआईटी क्या करेंगे अपन उसमें? ऐड. फिर नेक्स्ट ऐड। कमिंग टू इज डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम. ये तो अभी मैंने पहले समझाया था. एन फीफा, यहाँ पे फिया दिया हुआ, यू विल अंडरस्टैंड विद द कंसेप्ट ऑफ एन फीफा. क्या बताया था? डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे, जब जब डोमेस्टिक से नेशनल इनकम की तरफ जाएंगे वी विल ऐड व्हाट? एन फीफा. दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. फीफा है इसलिए ऐड कर रहा हूं, फीटा होता तो माइनस. और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक की तरफ जा रहा हूं सो अगेन आई विल डिडक्ट एन फीफा. यस। इज दिस क्लियर? अब अगर यही एन फीटा, ये वाले कौन से मैंने पहले समझा दिए, अगर एन फीटा दिया होता तो मैं माइनस करता, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल जाता तो एन फीटा माइनस, क्योंकि टू अब्रॉड है, फ्रॉम अब्रॉड नहीं है. इस बार एन फीटा है तो माइनस होके नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा. वही अगर नेशनल से डोमेस्टिक जानना है तो इस बार एन फीटा क्या करूंगा? प्लस. दीज आर दी वेरी बेसिक गोल्डन रूल्स को बोला जाता है इकोनॉमिक्स में बेसिक गोल्डन रूल्स रिलेटेड विथ योर नेशनल इनकम. अगर ये रूल समझ लिया, every question of national income is easy for you. You will not be facing any difficulty for conversion. अब starting with the first aggregate, सबसे पहला एग्रीगेट पढ़ते हैं आज, which is gross domestic product, GDP. G is for gross, D is for domestic and P is for product. अब जीडीपी का फाइनलाइजेशन अगर हम देखें तो जीडीपी इज फर्स्ट कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस. नाउ व्हाट इज मार्केट प्राइस? मतलब हम एक्चुअल प्राइस पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे इट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. वर्ड यूज है डोमेस्टिक, तो अपने को डोमेस्टिक टेरिटरी के कौन से याद होने चाहिए जो मैंने बताए थे? ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. ओके. अब इसको तोड़ो. अगर अगर मैं बोलूं जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है तो जी इज फॉर ग्रॉस, डी इज फॉर डोमेस्टिक, पी इज फॉर प्रोडक्ट एंड एमपी इज फॉर मार्केट प्राइस. तो जी ग्रॉस मतलब इट इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन. ठीक है, जी अगर ग्रॉस वर्ड है तो यहाँ पे बताएगा कि जी इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन. डी इज डोमेस्टिक, एज यू कैन सी डोमेस्टिक सिग्निफाई दैट इट इज लाइंग इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री. फिर पी, पी इज व्हाट? प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मतलब हमको क्या कंसिडर करना है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. बचपन में पढ़ते आ रहे हैं जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. और लास्ट में मार्केट प्राइस, मतलब ये क्या है? टैक्स इंक्लूडेड है और इसमें से सब्सिडी क्या करके रखी है? अभी सब्सिडी माइनस करी हुई है, मतलब ये इंक्लूसिव ऑफ एनआईटी है. क्लियर विद द फर्स्ट एग्रीगेट? ये फर्स्ट एग्रीगेट है जीडीपी एट एमपी. अब इससे रिलेटेड ये फ्लो चार्ट है. how to convert from this to this you will understand with the help of flowchart. So let us understand very clearly. क्या दिया हुआ है? जीडीपी एट एमपी हमको ये दिया है क्वेश्चन पे.
मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है जीडीपी एट एमपी इज 20,000. What the value of GDP at MP is given? GDP at MP is 20,000. अब GDP at MP से मुझे GDP at FC पे पहुंचना है, तो मैंने यहाँ पे क्या माइनस करा है? NIT. क्यों? NIT देखो, G से G कोई चेंज नहीं, DP से DP कोई चेंज नहीं, सिर्फ चेंज क्या है? मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट. अब क्वेश्चन NIT तो क्वेश्चन फ्रेम ऐसा होता है, सपोज आपको जैसे जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन के अंदर दिया होगा गिवन जीडीपी एट एमपी इज 20,000, और उसके बाद दिया टैक्स. टैक्स बोला कि भैया टैक्स आपका भरा हुआ है 500, और जो सब्सिडी आपको मिली हुई है, सब्सिडी इज गिवन एज 100. तो यहां से एनआईटी निकल जाएगा. गौरव, व्हाट इज द एनआईटी? yes sir. व्हाट इज द एनआईटी फॉर्मूला? टैक्स माइनस सब्सिडी. व्हाट इज एनआईटी? Sir, tax minus subsidy. कितना है एनआईटी इस केस में? 400. Sir, 500 400. minus 100, subsidy is 100 and tax is 500. तो NIT कितना आ गया? 400. सो अगर 400. आपको जीडीपी एट एमपी से जीडीपी एट एफसी जाना है, तो एनआईटी मैंने नीचे निकाल लिया 400. तो 20,000 में से मैंने 400 क्या कर दिए? डिडक्ट. तो कितना आ गया? 19,600. दैट इज जीडीपी एट एफसी. गेटिंग गौरव? कैसे कन्वर्ट करा? Yes sir. ये एक फर्स्ट एग्रीगेट था जीडीपी एट एमपी, और इस एग्रीगेट को मैंने कन्वर्ट करा जीडीपी एट एफसी में. मतलब एक एग्रीगेट से हम दूसरे एग्रीगेट पे गए, वो भी नेशनल इनकम के दूसरे एग्रीगेट. अब सपोज आपको जीडीपी एट एफसी से पहुंचना है एनडीपी एट एफसी. अब देखो, एफसी एफसी अपने आप कैंसिल हो गया, डीपी डीपी अपने आप कैंसिल हो गया, बाकी बचा गोल्डन रूल. कौन सा? ग्रॉस से नेट. तो अभी बताया था ग्रॉस से नेट क्या होता है? क्या होता है Minus. गौरव? माइनस डेप्रीसिएशन. तो यहाँ पे देख माइनस डेप्रीसिएशन लिखा हुआ है. अब मान के चलो जो जीडीपी एट एफसी, अभी सपोज वही एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करते हैं. 19,600 मेरा जीडीपी एट एफसी दिया हुआ है जो हमने अभी निकाला, और आपको दिया हुआ है डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन इज सपोज 600. तो अगर डेप्रीसिएशन 600 है, तो जीडीपी एट एफसी में से क्या माइनस करा मैंने? डेप्रीसिएशन. दैट इज 600 आई हैव डिडक्टेड. और जैसे ही 600 माइनस करा, तो मेरे पास क्या आ गया? एनडीपी एट एफसी. क्योंकि अपन ने डेप्रीसिएशन डिडक्ट करा है, सो वी विल गो फ्रॉम ग्रॉस टू नेट. सो अल्टीमेटली इट इज 19,600 माइनस 600. सो एनडीपी एट एफसी कितना आ जाएगा? आपका 19,000. क्लियर गौरव? कैसे अपन ये कन्वर्जन कर रहे हैं? चलो, गोइंग फॉर द नेक्स्ट कन्वर्जन. नाउ एनडीपी एट एफसी तक पहुंच गए. मान के चलो अभी एनडीपी एट एफसी आपका कितना आ गया? 19,000. अब मुझे Yes. पहुंचना है एनडीपी एट एफसी से, अब पहुंचना है एनडीपी एट एमपी. तो यहाँ पे देख, नेट टू नेट कोई इफेक्ट नहीं, डीपी टू डीपी कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस अभी बताया था क्या करते हैं अपन? एनआईटी प्लस. तो Plus अभी एनआईटी निकाल के भी रखा था. एनआईटी कितना चल रहा था हमारा? 400 रुपए. तो 400. अब 19,000 में से 400 प्लस कर लूंगा, तो एनडीपी एट एमपी कितना आ जाएगा मेरा? 19,400. ठीक है. अब Yes. एनडीपी एट एमपी तो मैंने निकाल के रख लिया. अब मुझे एनडीपी एट एमपी पे जीडीपी एट एमपी पे जाना है. सो अगेन अप्लाई द गोल्डन रूल. एनडीपी एट एमपी से जीडीपी एट एमपी. नाउ व्हाट यू कैन सी, नेट टू ग्रॉस, डीपी डीपी कैंसिल हो गया, एमपी एमपी कैंसिल हो गया. मेरे पास क्या बचा है? सिर्फ नेट टू ग्रॉस. तो नेट टू ग्रॉस में क्या प्लस करते हैं? प्लस डेप्रीसिएशन. अभी डेप्रीसिएशन मान के चला, 600 डेप्रीसिएशन मान के चला था. सो डेप्रीसिएशन अगर इसमें प्लस कर लूंगा 19,400 में, डेप्रीसिएशन जो मैंने अज्यूम करा था दैट वाज 600. तो वो डेप्रीसिएशन 600 प्लस कर लिया. तो अगेन हम किस पे आ गए? जीडीपी एट एमपी जो स्टार्टिंग में मान के रखा था 20,000. हो गया क्लियर गौरव? Yes sir. कैसे फ्लो चार्ट हेल्प करेगा? ये फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट दीज एग्रीगेट्स. ये सर हो गए क्लासरूम में नहीं 4 है क्या अपने डोमेस्टिक लेक्चर? एग्रीगेट्स. हाँ आप बेटा. जो लेक्चर्स उसमें भेजते हो तो उसमें क्लासरूम में है ना? हाँ हाँ, आई विल सेंड इन द क्लासरूम. यस I सर, have उसी में sent से the देख notes लूंगा ना also. I have sent स्क्रीन. this. Now coming to this, 4 डोमेस्टिक एग्रीगेट्स हो गए. अब आएंगे बेटा हम 4 नेशनल एग्रीगेट्स पे.
जैसे यहाँ पे डी है ना, बस उसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा, एन। नाउ सी इन दिस स्लाइड, यहाँ पे आ गया जीएनपी एट एमपी, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या लिख रहा है? इट रिफर्स टू ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। पहला वर्ड क्या था उसमें? डोमेस्टिक टेरिटरी, बिकॉज वो डोमेस्टिक था। लेकिन यहाँ पे अब नेशनल कॉन्सेप्ट आ गया, तो मैं किसको फोकस करूंगा? नॉर्मल रेसिडेंट को। अब वहीं पे आ जाओ, जीएनपी एट एमपी दिया हुआ है तुमको। अब जीएनपी एट एमपी से मुझे वापस पहुंचना है जीएनपी एट एफसी। ग्रॉस से ग्रॉस कैंसिल, एनपी से एनपी कैंसिल, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। क्या करते हैं हमेशा? माइनस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब NIT। चलो लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज जीएनपी एट एमपी 15,000 दिया हुआ है। अब तुमको टैक्सेस जो दिए हुए हैं, टेक फॉर द एग्जांपल टैक्सेस इज 400, एंड सब्सिडी जो दी नहीं है इस बार, सब्सिडी तुमने दी है वो 200 दी है। सो एनआईटी कितना चल रहा है? 400 माइनस 200। एनआईटी का फॉर्मूला गौरव, दैट इज टैक्स माइनस, टैक्स माइनस सब्सिडी सो 400 माइनस 200, सो एनआईटी मेरा कितना आ गया? 200। अब मैं 200 200। इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 14,800। क्या आ गया मेरा? जीएनपी एट एफसी। क्लियर? अपन इस वाले से यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या माइनस करा? एनआईटी। क्यों? क्योंकि ग्रॉस से ग्रॉस कैंसिल हो गया, एनपी से एनपी कैंसिल हो गया, पर मेरे को एमपी से एफसी जाना है। तो अप्लाई दी गोल्डन रूल। अब गोल्डन रूल क्या कहता है कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आएंगे, तो क्या माइनस करना पड़ेगा? एनआईटी माइनस। NIT एनआईटी कैसे निकालते हैं? टैक्स माइनस सब्सिडीज। जैसे सब्सिडी। माइनस करा यहाँ पे, टैक्स माइनस सब्सिडीज करा, तो यहाँ पे 200 आ गया। 15,000 माइनस 200, यहाँ पे एक आंसर 14,800 आ गया। नाउ कीपिंग दिस आंसर वी विल मूव फर्दर टू गो फॉर एनएनपी एट एफसी। अच्छा, एनएनपी एट एफसी किसका शॉर्ट फॉर्म है? स्टार्टिंग में सर बताया NNP था, और FC अपने आपने यही तो बताया था, ये अपने नेट नेशनल प्रॉफिट इनकम का शॉर्ट नेशनल। फॉर्म है। और एनडीपी एट एफसी डोमेस्टिक इनकम का शॉर्ट फॉर्म है। याद रखना, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग बच्चों को होते हैं। चलो, अब जीएनपी एट एफसी तुमको 14,800 दिया हुआ है। अब जीएनपी एट एफसी से तुमको एनएनपी एट एफसी पे पहुंचना है। अगेन अप्लाई दी बेसिक रूल, जीएनपी एट एफसी, और यहाँ पे दिया हुआ है मेरे को एनएनपी एट एफसी। तो ग्रॉस से नेट तो जाएगा, एनपी एनपी कैंसिल हो गया, एफसी एफसी कैंसिल हो गया। कौन सा रूल बचा मेरे लिए? सिर्फ ग्रॉस से नेट जाना है। तो ग्रॉस से नेट जाऊंगा तो क्या करूंगा? डेप्रीसिएशन माइनस, तो डेप्रीसिएशन माइनस क्या, मान लो डेप्रीसिएशन दिया हुआ है 800, तो 14,800 में से 800 माइनस कर लिया, तो मेरे पास एनएनपी एट एफसी कितना आ गया इस बार? 14,000। आया समझ में गौरव कि कैसे कन्वर्ट करा यस जीएनपी एट एफसी को एनएनपी एट एफसी में? बस अगर रूल्स याद होंगे तो पूरा चैप्टर इजी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब आप एनएनपी एट एफसी तक पहुंच गए, दैट इज 14,000। तो 14,000, अब मुझे पहुंचना है एनएनपी एट एफसी से एनएनपी एट एमपी। तो अगेन अप्लाई दी रूल कि एनएनपी एट एफसी दिया हुआ है और एनएनपी एट एमपी तक पहुंचना है। एन से एन कैंसिल हो गया, एनपी से एनपी कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। क्या करते हैं? एनआईटी प्लस, तो फैक्टर कॉस्ट से एनआईटी। अभी एनआईटी निकाल के रखा था अलग से। एनआईटी कितना था? 200। टैक्स माइनस सब्सिडी करा था ना, टैक्स 400 था, सब्सिडी 200 थी, तो एनआईटी कितना चल रहा था? 200। तो यहाँ पे 200। प्लस करेंगे 14,000 प्लस 200, तो ये आ जाएगा 14,200। 14,200, दैट इज एट एमपी। अब लास्ट स्टेज पे आ जाएं, दैट इज जीएनपी एट एमपी, दैट इज 14,200 से अब मुझे पहुंचना है जीएनपी एट एमपी। अभी एग्जांपल पे लिया था मैंने, डेप्रिसिएशन कितना चल रहा था मेरा? 800। तो एनएनपी एट एमसी से जीएनपी एट एमपी जाना है। अगेन अप्लाई द रूल, NNP at MP, and here it is GNP at MP. MP से MP कैंसिल, NP से NP कैंसिल, नेट से ग्रॉस। क्या करूंगा? डेप्रीसिएशन प्लस, तो प्लस करा कितना? डेप्रीसिएशन 800 प्लस करा, तो 14,200 में 800 प्लस किया तो आ गया मेरा 15,000। और याद करो मैंने स्टार्टिंग में इसको कितना लिया था? 15,000।
सो यस एनीथिंग गो बाय एनी वे, आपने जो अज्यूम लिया है वो उस आंसर तक अपने आप पहुंच जाओगे अगर आपने फॉर्मूला सही से लगाए हैं। गलत फॉर्मूले लगा दिए तो ये फॉर्मूलाज नहीं बन पाएंगे, and ये बहुत क्रूशियल टास्क होता है बच्चों के लिए। नाउ ये है सारे एग्रीगेट्स, मतलब अपने 4 हो गए डोमेस्टिक वाले एग्रीगेट और 4 हो गए कौन से, नेशनल वाले एग्रीगेट्स। तो काउंट करो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 सेवन, 7 एट। तो 8 ये चारों के 8 चारों का फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पे बना के दिया हुआ है कि कैसे कन्वर्जन करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे इसे कन्वर्ट करते हैं। देखो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आ जाएगा, तो डोमेस्टिक मैंने समझा दिया कि एनडीपी एट एफसी दैट इज डोमेस्टिक इनकम, मेंशन भी है कि एनडीपी एट एफसी क्या दिया हुआ है आपको, डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम से मुझे पहुंचना है जीडीपी एट एफसी पे, तो डेप्रिसिएशन प्लस किया, क्यों प्लस किया, नेट टू ग्रॉस, डीपी डीपी कैंसल, एफसी एफसी कैंसल, बस मेरा इफेक्ट बचा नेट टू ग्रॉस, डेप्रिसिएशन प्लस। फिर जीडीपी एट एफसी से जीडीपी एट एमपी, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस, जीडीपी वैसे का वैसे ही है तो हम क्या करेंगे, एनआईटी प्लस। फिर जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एमपी, एमपी एमपी कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ नेट ग्रॉस टू नेट, तो डेप्रिसिएशन क्या करूंगा मैं, माइनस। अब यहाँ पे इफेक्ट थोड़ा बदलेगा, इसमें दो इफेक्ट कैसे आ गए, तो दो इफेक्ट समझो। यहाँ पे एनडीपी एट एमपी दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है एनएनपी एट एफसी। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला वंस अगेन, एनडीपी एट एमपी और यहाँ दिया हुआ है एनएनपी एट एफसी। नेट से नेट कोई चेंज नहीं, हाँ डीपी से एनपी। अब डीपी से एनपी जाऊंगा तो एन फीफा प्लस करूंगा, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि डोमेस्टिक से नेशनल जा रहा हूं। और दूसरा मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जा रहे हो, सो एनआईटी क्या करोगे, माइनस। तो ये वाले इफेक्ट में दो चेंजेस आएंगे। पहला, नेट फैक्टर इनकम हम प्लस करेंगे, क्यों, क्योंकि डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हैं। और दूसरा एनआईटी हम क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं। इज दिस क्लियर गौरव? यस अब यही नेशनल इनकम के बारे, फिर चारों यहाँ पे आ गए जो मैंने अभी समझाए थे कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब ये वाला इफेक्ट देख, जो ये दो वाले हैं, नेशनल इनकम एनएनपी एट एमपी से मुझे डोमेस्टिक इनकम पे जाना है। अगेन अप्लाई द बेसिक रूल कि एनएनपी एट एमपी से मुझे जाना है एनडीपी एट एफसी, तो नेट से नेट कैंसिल, पर एनपी से डीपी। अब मैं जा रहा हूं नेशनल से डोमेस्टिक, तो मैं एन फीफा क्या करूंगा, माइनस, सो आई विल डिडक्ट व्हाट, एन फीफा। एन फीफा माइनस कर दिया। और दूसरा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, अगेन एमपी से एफसी जाते हैं तो एनआई क्या करते हैं अपन, माइनस, सो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, माइनस। तो ये पूरा इम्पैक्ट जाता है। सो दिस इज द ओवरऑल फ्लो चार्ट, जिसके अंदर पूरे कितने एग्रीगेट्स होते हैं, 8 एग्रीगेट्स। 8 एग्रीगेट्स में याद रखना, 4 डोमेस्टिक एग्रीगेट्स हैं ये वाले, एनडीपी, जीडीपी, जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी, एंड 4 नेशनल एग्रीगेट्स हैं, एनएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी एंड एनएनपी एट एमपी। ओवरऑल कितने एग्रीगेट्स, 8 एग्रीगेट्स और आठों का ये रिलेशन। ठीक है, आज का लेक्चर समझ में आया गौरव? पूरा सर You पूरा। able to understand? हाँ सर। Do subscribe the channel and ask your other students also. सर So मैंने सारे